Of the podcast, I just want to ask you yes or no questions. Okay, sure. Yeah. Are eyes facials permanent treatment for tightening of the pores? No, not at all. Not at all. तो टीनेज एक्ने तो हमें पता है कि भाई कैसे डील करना है, क्या रीजंस होते हैं, इट्स मोस्टली हार्मोनल। बट उसमें भी मैं एक चीज़ कहूँगी कि पेरेंट्स नहीं लेके आते बिकॉज वो कहते हैं ये तो उम्र की वजह से है, तो एज की वजह से। Good morning, Dr. Megha. गुड How are मॉर्निंग। you? आई एम गुड, आई एम गुड। So thank you for taking out your valuable time. थैंक यू सो मच। So सबसे पहले मैं आपको पूछना चाहती हूँ, what are the signs that tell us that our skin is truly healthy? For the skin to be truly healthy, we consider 3-4 points. One is even skin tone. The second is smooth texture, and if the skin is hydrated well, and most importantly, it should not break out easily, and there should not be any inflammation like redness on the skin. Then we can consider that yes, the skin is healthy. Yeah. Perfect skin is nothing. It's Okay. a misnomer that we think that someone thinks that their skin is perfect. It's very rare I've found that someone says हाँ मेरी skin perfect है, Perfect है। because I think सबको ये लगता है it can be better, थोड़ा और कुछ अच्छा हो सकता है, थोड़ा color light हो सकता है, but as a dermat what we feel perfect skin is a skin which is like of even skin tone, Okay. which has got smooth texture and which is hydrated, and most importantly it doesn't have much of frequent breakouts and redness. Okay. So this kind of skin we consider as perfect skin. Perfect skin. But again it's a big thing to say that we can make someone's skin perfect, because Okay. it's never so. Nobody's skin is perfect. Nobody's skin is perfect. सब लोग आजकल ना आफ्टर लुकिंग इन द सोशल मीडिया एंड एवरीबडी इज देयर ऑन सोशल मीडिया ज्ञान बांटते रहते हैं। पहले हम गूगल बाबा बोलते होते थे, आजकल द इन्फ्लुएंसर्स आर देयर टू गिव अस हेल लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। Absolutely, yeah. सो अकॉर्डिंग टू यू अभी जैसे मॉइस्चराइजिंग और सनस्क्रीन, मतलब मैंने भी सुना है दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अकॉर्डिंग टू यू, हाउ इंपॉर्टेंट इज मॉइस्चराइजिंग योर स्किन एंड देन अप्लाइंग सनस्क्रीन ओवर इट? It's like really important. Okay. I would say that both the steps are important. Initially there was a routine which everyone followed, like cleansing, toning and moisturizing. Right. CTM used to be the key factor in your skincare Right. routine, but now what we say is that one should use a cleanser, then moisturizer and sunscreen. So we should not use There is toners. no point in using toner, because in earlier days the soap were like of high pH. So Okay. to maintain the pH one need toner, but now because the cleansers are of very good quality and they are near to skin pH, we don't require toners anymore. So just after cleanser we can go to moisturizer and then sunscreen. And if your sunscreen has got moisturizer in itself, then we don't actually require moisturizer. Okay. Because there are sunscreen these days which have got good moisturizers in it with ceramides, hyaluronic acid and all. So it's not like very important that you use a moisturizer in the morning. Okay. But using a sunscreen is a really must. really important. So how many times in a day you have to use See, sunscreen? it's not very feasible if I say that you should put sunscreen every 2 to 3 hours. Right. Because now everyone is working, most of the people are working, and it's not possible for them to wash their face after every 2-3 hours, put on the makeup, put on the sunscreen. So one thing which they can follow is to use a sunscreen which lasts for almost 8 to 10 hours. Okay. And if there is not much of sun exposure, they can use a good layer in the morning, just once in the morning. And if there is lot of sun exposure, they can use it again after 4 hours or so. अच्छा, तो एसी के अंदर या इंडोर्स भी हमें सनस्क्रीन की जरूरत है? सम पीपल से दैट वी शुड, देयर इज नो नीड। नहीं, ऐसा नहीं है। अगेन इट्स अ मिथ। वेदर यू स्टे इंडोर्स और यू मूव आउटडोर्स, आपको सनस्क्रीन लगानी ही है। वेदर इट्स क्लाउडी और इट्स सनी, सनस्क्रीन लगानी है। बहुत लोग बोलते हैं बिकॉज वी ट्रैवल इन कार सो वी डोंट पुट सनस्क्रीन, बट थ्रू ग्लास विंडोज ऑल्सो देयर इज UVA penetration, and UVA is the wavelength which causes maximum damage to the skin. तो आप चाहे कार में ट्रैवल कर रहे हो, चाहे आप क्लाउडी वेदर में मूव कर रहे हो, and whether you are in these UV lights and infrared lights, you need sunscreen. अच्छा, क्योंकि आजकल स्क्रीन टाइम भी ज्यादा है, तो आई गेस वहां से भी रेज आती हैं। हाँ। ओके,
So in AC, in indoors, you should also wear use a sunscreen. And then if you are in AC throughout the day, it's better to use a moisturizing sunscreen because Okay. AC itself creates like dry skin. Dryness. So it's better to use a moisturizing So sunscreen. if we want to invest in a good moisturizer, तो what are the key factors कि हमें देखना चाहिए? Serum based, gel based होता है, Again water depends, based. Karuna, again it depends on the type of skin. Okay. ठीक है. ऑयली स्किन भी डिहाइड्रेटेड हो सकती है, ड्राई स्किन भी डिहाइड्रेटेड हो सकती है. तो इफ़ यू हैव गॉट ऑयली स्किन, क्योंकि मॉइस्चराइजर्स में भी बहुत सारे वेरिएंट्स होते हैं, आपका ह्यूमेक्टेंट्स होते हैं, इमोलिएंट्स होते हैं, ऑक्लूसिव्स होते हैं. तो आपको बेसिकली अगर थोड़ा सा देखना है, एक लेमैन के लिए मैं अगर बोलूँ कि मॉइस्चराइजर में क्या होना चाहिए, तो इट शुड बी नॉन कॉमेडोजेनिक. एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है. नॉन कॉमेडोजेनिक मीन्स कि वो पोर्स ब्लॉक नहीं करेगा आपका और उसमें कॉमिडॉन्स क्रिएट नहीं करेगा. तो इट शुड बी अ नॉन कॉमिडोजेनिक मॉइस्चराइजर. अगर आपकी बहुत ड्राई स्किन है तो उसके अंदर हम ये ह्यूमेक्टेंट्स और इमोलिएंट्स, ह्यूमेक्टेंट्स होता है समथिंग विच ट्रैप्स मॉइस्चर फ्रॉम द एनवायरनमेंट. ठीक है, जैसे ग्लिसरीन हो गया कि मॉइस्चर से एनवायरमेंट से मॉइस्चर लिया और वो स्किन में इनकॉर्पोरेट किया. दूसरा होता है इमोलिएंट्स, जिसमें जैसे स्क्वेलिन, सेरामाइड्स, पेप्टाइड्स, जो आपकी स्किन में जो नेचुरली जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हम आर्टिफिशियली स्किन पे लगा रहे हैं. इमोलिएंट्स जो होता है, तो बेसिक नॉर्मल किसी भी स्किन के लिए लाइट ह्यूमेक्टेंट एंड लाइट इमोलिएंट्स अच्छा वर्क करता है, जहाँ पे आपका लिखा हो कि नॉन कॉमिडोजेनिक है. और मॉइस्चराइजर में जैसे सेरामाइड्स हैं, बेसिक सेरामाइड्स हैं, आजकल बहुत सारी सेरामाइड्स आ गए हैं. वो कहते हैं 5 सेरामाइड्स, 6 सेरामाइड्स, तो 2 to 3 सेरामाइड्स हो और नॉन कॉमिडोजेनिक हो, तो दैट्स अ गुड मॉइस्चराइजर फॉर फेस. अगर इफ यू आर लुकिंग फॉर बॉडी मॉइस्चराइजर्स या जैसे आपके जो जॉइंट्स हैं उनके लिए अगर आप देख रहे हो, तो इट्स बेटर टू गो फॉर ऑक्लूसिव्स. ऑक्लूसिव्स मींस जिसमें आपका जैसे वैसलीन हो गया, पेट्रोलियम जेली जो हो गया. जो वैसलीन हम फेस पे लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि वैसलीन क्या करता है, वो एक बैरियर फॉर्म कर देता है. तो जो अंदर का मॉइस्चर है वो अंदर ही है, बाहर का बाहर है. बट अगर अंदर मॉइस्चर है ही नहीं तो वो वैसलीन वर्क नहीं करेगा. और समटाइम्स इन द नाइट आई अप्लाई वैसलीन ऑन माय फेस. नहीं, वो एक बीच में ये भी एक फैड आया था टू पुट लॉट ऑफ वैसलीन एंड, बट वो अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है तो आपको सूट कर जाएगा. बट एट टाइम्स इट कैन अगेन क्रिएट दोज कॉमिडॉन्स ऑन द स्किन, क्योंकि इट वर्क्स एज अ ऑक्लूसिव. ठीक है, प्रॉब्लम्स ऑफ पिंपल्स, एक्ने, हाँ, वो हो सकता है. मतलब सब चीजें डिपेंड करती हैं ऑन योर स्किन टाइप कि आपके लिए क्या ठीक है. वैसलीन आपके लिए हो सकता है सूट होता हो तो आप बताओगे कि हाँ वैसलीन अच्छा है, बट अगर वो बाकी लोग यूज करेंगे तो मे बी 5 out of 10 विल गेट दोज कॉमिडॉन्स. सो वन थिंग नेवर अप्लाइज फॉर एवरीवन. हाँ, तो वो आपको डिफरेंट वर्क. सो एक्ने इज मोर ऑफ अ टीनेज प्रॉब्लम या फिर एडल्ट एक्ने भी मैंने सुना है कि आजकल में भी आफ्टर 40s द स्किन बिकम्स ड्राई एंड एक्ने प्रोन. सो please tell about something about acne. Acne again it's a concern for both teenage and adults. कई बार ये होता है कि टीनेज में होता है एंड इट सबसाइड्स बाय 18-19 years of age. एट टाइम्स वो टीनेज में होता है एंड इट कंटिन्यूज इन योर एडल्टहुड. और एट टाइम्स आपका 30 के बाद ही शुरू होता है, जिसको हम एडल्ट ऑनसेट एक्ने कहते हैं. तो टीनेज एक्ने तो हमें पता है कि भाई कैसे डील करना है, क्या रीजंस होते हैं. इट्स मोस्टली हार्मोनल. बट उसमें भी मैं एक चीज कहूंगी कि पेरेंट्स नहीं लेके आते बिकॉज वो कहते हैं ये तो उम्र की वजह से है, तो एज की वजह से है, तो सबसाइड हो जाएगा. एंड देन द चाइल्ड गेट्स लॉट ऑफ पिगमेंटेशन, स्कार्स एंड ऑल. तो अगर थोड़ा बहुत है तो इट्स ओके कि आप और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी आ जाता है बच्चों को. आजकल ये तो बहुत ज्यादा है. एवरीवन इज सो कॉन्शियस अबाउट देयर इमेज एंड अपीयरेंस, एवरीथिंग. सो ये बहुत जरूरी है कि अगर पस फिल्ड लीजन्स हो रहे हैं और अगर आपको लग रहा है कि भाई वो स्पॉट्स छोड़ रहा है, स्कार्स छोड़ रहा है, तो यू शुड विजिट अ डर्मेट, क्योंकि वो बच्चे के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है उस तरह से अपने प्राइम उसमें टीनेज में उसको डील करना. तो वन शुड नॉट टेक इट लाइटली. और ऐसा नहीं है कि आपको बहुत हाई साइड ऑफ मेडिकेशंस लेने की नीड है. अगर आपको डॉक्टर डाइट भी बताते हैं, कुछ क्रीम्स वगैरह बताते हैं, वो फॉलो करते हैं तो इट्स सबसाइड्स, कंट्रोल में आ जाता है. आज मतलब आजकल क्या हमेशा ऐसे घर पे ही जैसे पिंपल्स होते थे तो वो लगा देते थे. कभी कोई कहते हैं कोई लगा लो, टूथपेस्ट लगा दो. कभी कहते हैं मुल्तानी मिट्टी से फेस साफ हो जाता है. एंड दे से मॉर्निंग का सलाइवा जस्ट
put it on that pimple, it will subside. तो are these myths? हाँ नहीं ये नहीं कहूंगी हाँ. मतलब कि बिल्कुल इसको मैं ऐसे साइडलाइन नहीं करूंगी कि दीज आर ऑल वेस्ट एंड क्योंकि जैसे अगर आप मॉर्निंग सलाइवा की बात करोगे तो उसमें भी एंटीबैक्टीरियल एंजाइम्स होती हैं विच मे वर्क, ठीक है. अगर आप मुल्तानी मिट्टी की बात करोगे तो क्योंकि यूजुअली एक्ने ऑयली स्किन पे होता है, तो अगर आप केवल मुल्तानी मिट्टी यूज कर रहे हो इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है. इट विल टेक केयर ऑफ द एक्सेसिव ऑयल ऑन द स्किन. बट अगर कोई ड्राई स्किन वाला भी उसमें टोमेटो मिक्स करके लगा रहा है तो फिर वो चीज ठीक नहीं है. पीएच बैलेंस खराब हो जाएगा, खराब हो जाता है. और इन सब चीजों में डिफरेंट एसिड्स होते हैं जो आपकी रॉ वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, मिल्क है, तो इन सब में एसिड्स होते हैं और ये एक स्टैंडर्डाइज्ड नहीं होता कि इतना % है इसमें. वो कितना फ्रूट रॉ है, कितना वो वेजिटेबल रॉ है, उस सब चीजों पे डिपेंड करता है. तो आपकी स्किन पे वो सूट होगा नहीं होगा वो कोई भी डरमैट नहीं बता सकता अनलेस एंड अनटिल यू हैव ट्राइड इट योरसेल्फ एंड यू फील. तो हम ये कह देते हैं ठीक है अगर आपने यूज किया हुआ है एंड इफ इट सूट्स यू वेल तो आप करो. हाँ, बट हम ऐसा नहीं बोल सकते. मुल्तानी मिट्टी आई कैन एग्री कि हाँ इट वर्क्स गुड फॉर ऑयली एक्ने प्रोन स्किन. पर जैसे अब ये पेप्सोडेंट या ये एनी ऑफ द टूथपेस्ट जो हो जाता है तो अगेन वो एंटी इन्फ्लामेटरी तो थोड़ा सा रहेगा कि वो रेडनेस थोड़ा सबसाइड कर देगा. बट जब आपके पास इतने स्टैंडर्डाइज्ड और बेटर ऑप्शंस हैं तो व्हाई टू गो फॉर एनी एक्सपेरिमेंट. आप आजकल तो एक्ने पैचेस आ गए हैं, इतना अच्छे अच्छे जेल्स आ गए हैं, सैलिसिलिक एसिड जेल्स, बेंजोइल पेरोक्साइड जेल्स, तो यू कैन पुट दैट. व्हाई टू गो अहेड विद टूथपेस्ट जिसके लिए बनाए उसकी के लिए यूज करें उसे तो बेटर. एंड मैंने ये सुना है बहुत सारे लोग जो है जैसे कभी यू हैव moles or warts on your skin, they apply that चूना on your skin. वो चूना बार्बर्स भी लगा लेते हैं कई बार. तो देखिए एट टाइम्स तो इट वर्क्स क्योंकि वो एसिड है तो वो स्किन को वहां पे जो है डेड कर देगा, नेक्रोसिस कर देगा एंड देन दैट थिंग्स फॉल्स ऑफ, ठीक है. बट कई बार वी हैव सीन बिग स्कार्स ऑन फेस बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि वो कितना लगाना है, कैसे लगाना है. सो जब तक वो ठीक रहता है बट जब वो एक दो केसेस में वो स्कारिंग और वो होती है देन यू रियलाइज कि इट कैन बी सो डैमेजिंग, ठीक है. तो एज अगर आप को वो रिस्क नहीं लेना चाहते हो आप ऑब्वियसली फॉर योर फेस स्किन, तो देन इट्स बेटर टू गो फॉर RF और लेजर फॉर योर मोल्स एंड वॉट्स. और हम जो एडल्ट ऑनसेट एक्ने की जो हम बात कर रहे थे, एक्चुअली एडल्ट ऑनसेट एक्ने के मल्टीपल रीजंस होते हैं. इट कैन बी हार्मोनल मोस्ट इम्पॉर्टेंटली. यूजुअली PCOD अगर होता है आपको या पेरीमेनोपॉजल होता है तो होता है. सेकेंडली आजकल बहुत कॉमन रीजन है द काइंड ऑफ कॉस्मेटिक्स एंड प्रोडक्ट्स यू आर यूजिंग. एंड थर्ड इज एनी ऑफ द पार्लर फेशियल्स, क्लीनअप्स एंड ऑल दोज थिंग्स, बिकॉज एज आई टोल्ड यू जैसे स्क्रबिंग करते हैं या मसाज करते हैं तो दैट कैन ऑल्सो लीड. और वो जो कर रहे हैं वो भी बहुत सारे फेसेस के वॉश नहीं किया या कुछ है तो किसी यू कैन नॉट रिलाई मच ऑन द हाइजीन लेवल्स. और अगर कर भी रहे हैं तो एट टाइम्स सी दोज आर नॉट प्रोफेशनल्स, ठीक है. तो आपकी स्किन के लिए क्या सुटेबल है, हमने कई बार देखा है कि आप पूछते जाते हो एंड देन यू रियलाइज कि 3 वीक्स पहले कोई फेशियल हुआ है, क्लीन अप हुआ है विच हैज लेड टू दिस काइंड ऑफ इरप्शंस एंड थिंग. तो ये सारे रीजंस होते हैं बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली हार्मोनल रहता है. और कई बार आपका डाइटरी ऐसा है जैसे यंगस्टर्स में हम लोग बोलते हैं भाई लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड इम्पोर्टेंट है. तो जंक है जो वो सबका बहुत ज्यादा हो जाता है, स्वीट और डेयरी बहुत ज्यादा हो जाता है. तो अगर हम कुछ नहीं करके केवल अपना डेयरी प्रोडक्ट्स हम रिड्यूस कर लें और अपना स्वीट इंटेक और जंक रिड्यूस कर लें तो भी काफी बार एक्ने का आपका प्रॉब्लम जो है ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाता है. अब कई बार तो जैसे बचपन में माय मदर आल्सो यूज्ड टू अप्लाई मलाई ऑन माय फेस. सो बट आजकल मेरे को लगता है ये सब चीजें करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए. मलाई एंड ऑल वही मैं कहूंगी करूँ ना कि गलत नहीं है, ठीक है. और यंग एज में तो क्या होता है क्योंकि आपका उतना ज्यादा ऑयली नहीं होती, उतना ज्यादा हार्मोनल सेंसिटिव नहीं होती आपकी स्किन, तो वो आप और फिर उस टाइम की मलाई और आज की मलाई भी तो डिफरेंट है. जैसे उस टाइम के फ्रूट्स में और आज के फ्रूट्स में बहुत डिफरेंस है. तो आजकल तो आप हल्दी हो चाहे मलाई हो चाहे बेसन हो, यू कैन नेवर बी 100% श्योर इफ इट्स इन द
प्योरेस्ट फॉर्म। Right. ठीक है, तो Right. बहुत सारा इसीलिए हम बहुत अच्छे से, क्योंकि कमिंग फ्रॉम अस देन इट शुड बी अ प्रॉपर थिंग। तो मैं ये नहीं कह सकती हाँ भी मलाई लगा लो आप, Right. ठीक है, Right. क्योंकि देयर आर ऑल्टरनेटिव्स, हाँ. तो वो लगाना डेफिनेटली Better है. सेफर है, बेटर है, तो वही रिकमेंड। Social media में there are a lot of celebrities. They are dunking their face in ice cold water. So I think it helps in reducing the puffiness. Pores minimize करते हैं. Correct me if I'm wrong. नहीं नहीं, यू आर राइट, बट द थिंग इज इट्स अगेन अ टेम्परेरी थिंग। Relief. Okay. क्योंकि वो एक एक्चुअली सेलिब्रिटीज हो या डरमेट्स हो विच आर एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, दे नीड something new every time. Yes. For their following. Yeah, for their followers to keep them hooked to their channels. Yes. So it's not something I would recommend on a regular basis. But अगर आप बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है डलनेस हो रहा है स्किन पे या टायर्ड हैं, तो आप कर सकते हैं, बट इट शुड नॉट बी लाइक अ एवरीडे थिंग, क्योंकि वो थोड़ा आपके पोर्स मिनिमाइज करेगा, बट अगेन टेम्परेरी बेसिस पे। मतलब इफ यू आर गोइंग फॉर अ पार्टी एंड इफ यू वांट टू पुट मेकअप और आपकी स्किन थोड़ा डल हो रही है और टायर्ड लुकिंग है, तो आप थोड़ी देर के लिए कर सकते हो। Before applying makeup, just yeah. You can कई do बारी it. ice cube भी we can scrub on our face. तो ऑन एंड ऑफ यू कैन डू इट, देर इज नो पर्टिकुलर साइड इफेक्ट, बट कई बार क्या होता है कि आपका इतना अगर स्किन का टेम्परेचर इमीडिएटली चेंज होता है, तो वो भी अपने आप में थोड़ा सा कई बार एलर्जीज होती हैं, अर्टिकेरियाज होते हैं, वो भी हो सकते हैं। तो कर सकते हैं, ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, बट बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं करना। So I've heard a lot about collagen. Collagen powders हैं, creams हैं, I guess tablets are also there. So how useful? It is a protein जो मैंने पढ़ा हुआ है, प्रोटीन, तो structural protein है। So आजकल मेरी बहुत सारी friends they have started taking collagen. So they are saying that it is anti-aging, wrinkles late पड़ेंगे, and some of the girls who are like in 20 they're 25 26 years of age, they have also started taking. So what do you suggest, we should have these things? Basically again बहुत in है, similar to glutathione. It's as you said, it's a protein, it's the largest number of structural protein which is made up of collagen. स्किन में भी होता है, आपके मसल्स में होता है, टेंडन्स, लिगामेंट्स में, सब जगह पे कोलेजन होता है। तो अब एक्चुअली इन रीसेंट पास्ट अब थोड़ा सा स्टडीज आई हैं विच सजेस्ट कि हाँ कोलेजन वर्क करता है ऑन एंटी एजिंग पार्ट, रिपेयर मैकेनिज्म ऑफ द स्किन। बट ऐसा नहीं है कि भाई हमने जितना कोलेजन खाया वो सब जाकर स्किन में हमारे फिट इन हो गया, ठीक है, बिकॉज जैसे प्रोटीन है तो वो पेप्टाइड्स में ब्रेक डाउन होता है, फिर वो पेप्टाइड्स जो हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उसी फॉर्म में जिस फॉर्म में हम खा रहे हैं वो पहुंच जाएगा। कोलेजन भी बहुत सारी तरीके का होता है, बट हमारे लिए जो स्किन पे वर्क करता है दैट इज कोलेजन 1, 2 and 3, ठीक है। तो वो हम खाते हैं तो वो पेप्टाइड्स में ब्रेक होके एंड देन दैट हेल्प दोज पेप्टाइड्स, जो स्मॉल पेप्टाइड्स हैं, वो फाइब्रोब्लास्ट एक चीज होती है विच मेक्स कोलेजन, तो उसको स्टिमुलेट करता है कोलेजन का इंटेक। बट बेसिकली ये है कि अगेन यू नीड टू नो कि अगर आप वेजिटेरियन हो तो देयर इज नथिंग लाइक वेज कोलेजन। जो वेज होता है दैट इज कोलेजन बूस्टर, ठीक है, वो थोड़ा सा न्यू कोलेजन बनाने में हेल्पफुल होता है। बट जो रियल कोलेजन होता है दैट इज अ एनिमल प्रोडक्ट, मतलब इधर फ्रॉम फिश और पिग और काउ वो होता है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि आप ये वेज कोलेजन खा रहे हो एंड दैट इज ओके, वो वर्क नहीं करेगा इन सिमिलर वे एज अ एनिमल डिराइव्ड कोलेजन विल वर्क। And secondly, so it is better if you are going for these products, you should go for animal derived, collagen. Absolutely. Then it doesn't matter if it's like in powder form or capsule or tablet form, but अगर हम इसको कोलेजन को साथ में इसके जैसे मैंने बताया और एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ अगर हम लेते हैं कोलेजन को, अगेन विटामिन सी एंड ऑल, तो इसका रिजल्ट्स और अच्छे होते हैं। बट यू नीड टू टेक इट फॉर मिनिमम 3 months to see any kind of results. और ऐसा नहीं है कि भाई हमने खाया and then it will last forever, क्योंकि aging is a continuous process. तो आपको in between like you can stop it again for 6 months or so and then you can take it for 3 months. Empty stomach आप morning में एक अपना कैप्सूल या टैबलेट ले सकते हो,
तो देयर इज़ नो पर्टिकुलर साइड इफेक्ट टू इट। 25 ईयर्स की एज के बाद ले सकते हैं, क्योंकि हमारा विद एज एवरी ईयर थोड़ा 1 to 2% हमारा कोलेजन जो है वो कंटेंट इन द बॉडी रिड्यूस हो जाता है। तो हम 25 के बाद ये ले सकते हैं। इट विल इम्प्रूव योर इलास्टिसिटी, इट विल इम्प्रूव द एजिंग साइंस, एंड it will give you the much needed that shine to the skin, so you can take it. I've heard lot about clean beauty. As a layman, अगर आप समझाना चाहें तो क्या है clean beauty? Actually it's a marketing buzzword, clean beauty. So clean beauty means there are many ingredients in sunscreens, moisturizers and all which are potentially harmful. कोई स्टैंडर्डाइज्ड इसमें स्टडीज नहीं है, बट ये पोटेंशियली हार्मफुल माना जाता है। जैसे आपने सुना होगा सल्फेट्स हो गया, पैराबेन्स हो गया, और बेंजोएट्स हो गया, फॉर्मेल्डिहाइड है। तो इन चीज़ों का ये बोला जाता है कि अगर इफ दीज इंग्रेडिएंट्स आर देयर देन दीज प्रोडक्ट्स आर हार्मफुल। सो मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि डेफिनेटली दीज आर हार्मफुल, बट वो किस क्वांटिटी में है और किस ब्रांड का है, इस पे भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। फिर क्लीन ब्यूटी, क्योंकि ये एस्पेक्ट तो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, बट द सेकंड थिंग इज क्योंकि क्लीन ब्यूटी में ये कहा जाता है कि आप ट्रांसपेरेंसी रखो, कि आपके जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं आप वो मेंशन करेंगे इन टर्म्स ऑफ परसेंटेजेस एंड एवरीथिंग। सो आई वुड स्ट्रांगली एडवोकेट कि ये तो होना चाहिए कि वन शुड नो कि व्हाट यू आर पुटिंग ऑन योर स्किन। एंड द थर्ड थिंग व्हिच क्लीन ब्यूटी एडवोकेट्स इज लाइक it should not be tried on animals. तो वो एक है, एक ह्यूमन वो ग्राउंड्स पे वो बोलते हैं कि वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो इन दोनों चीज़ों के लिए इट्स ओके कि हाँ ठीक है, बट अगर कोई ये कहे कि भाई नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज करो, ये सारे केमिकल्स वाला नहीं करो, बिकॉज क्लीन ब्यूटी फिलॉसफी सेज सो, तो आई वुड नॉट एडवोकेट दिस, आई वुड नॉट रिकमेंड दिस, क्योंकि ऐसा नहीं है कि नेचुरल सब कुछ अच्छा है वाली चीज है। नेचुरल में तो यू नेवर नो, एटलीस्ट विद एलोपैथिक ट्रीटमेंट विद दीज क्रीम्स यू नो ये चीजें हैं, यू कैन गो एंड सी ऑन गूगल कि क्या लगा रहे हैं, क्या साइड इफेक्ट्स हो सकता है, बट नेचुरल में तो आपको पता ही नहीं चलता कि क्या है। हाँ, सब कुछ केमिकल बेस्ड ही है, कुछ भी फ्री ऑफ केमिकल्स नहीं है। तो इट्स बेटर कि आप एक बार प्रोफेशनल हेल्प लो एंड देखो कि भाई आपकी स्किन को क्या चीज नहीं सूट कर रहा है, तो अकॉर्डिंगली फिर आप। देयर आर लॉट ऑफ एक्टिव्स व्हिच वी आर यूजिंग, जैसे एड्स भी आती हैं, विटामिन सी, रेटिनॉल, सैलिसिलिक एसिड, नाइसिनामाइड्स। सो हाउ इम्पोर्टेंट आर दीज आर दीज यूजफुल? जैसे रेटिनॉल भी मैंने भी इंस्टा पे देख के आई जस्ट बॉट रेटिनॉल एंड आई अप्लाइड in the night after my washing my face. I put retinol then cream. So is it effective, all these things? और हमें एक से ज्यादा एक्टिव इकट्ठा यूज करना चाहिए? ये बहुत एक ना बड़ा क्वेश्चन है। आई थिंक आई नीड अ सेपरेट थिंग फॉर ईच एंड एवरी इंग्रेडिएंट, बट अगर हम थोड़ा सा ब्रीफ में बात करें तो रेटिनॉल में अगेन इट डिपेंड्स ऑन परसेंटेज ऑफ रेटिनॉल। आप to start with you can use it at a lower percentage. फिर रेटिनॉल में भी करूँ ना, देयर आर वेरियस वेरिएंट्स ऑफ रेटिनॉल कि आप कौन सा रेटिनॉल यूज कर रहे हो, आप रेटिनिल यूज कर रहे हो, आप रेटिनॉल, आप रेटिनोइक एसिड, रेटिनल्डिहाइड, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। एंड देन वंस यू स्टार्ट विद रेटिनॉल, आप लोअर परसेंटेज पे यूज करो, रेटिनॉल यूज करो, एंड देन आप अपना सॉल्ट चेंज करते जा सकते हो। यू कैन बिल्ड अप ऑन इट कि आपने पहले रेटिनॉल यूज किया, फिर आप रेटिनल्डिहाइड बेस्ड कर रहे हो, फिर आप रेटिनोइक एसिड कर रहे हो, एंड आप परसेंटेज भी इंक्रीज कर सकते हो। यू कैन स्टार्ट विद 0.3, यू कैन गो अप टू 1% ऑफ रेटिनॉल, और आप फ्रीक्वेंसी भी अपना बिल्ड ऑन कर सकते हो। So retinol helps in preventing the wrinkles. Yes, definitely. It's a anti-aging. It's a very good anti-aging ingredient, और आप इसको easily use कर सकते हैं again after 25 years of age. But whenever you are using something anti-aging, you need to use it at night time, क्योंकि photosensitivity होती है, and you need to be very particular with the sunscreen use. At least twice a day आपको sunscreen लगाना है अगर आप कोई भी एक्टिव्स यूज कर रहे हैं। तो बाकी जैसे विटामिन सी जैसे आपने कहा,
तो मैं आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ इट, क्योंकि कई बार तो बहुत अच्छा सूट होता है एंड एट टाइम्स इट कैन लीड टू इरप्शंस एंड इट कैन लीड टू लिटिल रेडनेस ऑन द स्किन, बट हम यूज कर सकते हैं. वी कैन यूज रेटिनॉल इन द इवनिंग, वी कैन यूज विटामिन सी विद नाइसिनामाइड इन द मॉर्निंग बिफोर सनस्क्रीन. एक्टिव्स यूज करने में कोई दिक्कत नहीं है. अच्छे स्टैंडर्ड ब्रांड्स अगर हम यूज करते हैं और हमें पता है कि कब क्या यूज करना है, क्योंकि वी डू हैव पेशेंट्स जो ट्रेटिनोइन ऑनलाइन देखकर एंड वो मॉर्निंग इवनिंग ट्रेटिनोइन लगा रहे हैं. तो वो बहुत सन डैमेज कर सकता है स्किन को. तो कोई भी एक्टिव्स जो रहते हैं मेनली नाइट एप्लीकेशन होना चाहिए. नाइसिनामाइड हो गया, विटामिन सी हो गया, आपका फेरुलिक एसिड हो गया, हियालुरोनिक हो गया, ये आप मॉर्निंग में यूज कर सकते हैं. बट उसके बाद you need to put sunscreen on your face सनस्क्रीन, यस, before going out. यस, यस. How effective are these procedures like micro needling, chemical peeling, all these things? Basically, these are different procedures for different indications. Okay. अगर हम माइक्रो नीडलिंग की बात करें तो अगर आपने वेम्पायर फेशियल सुना हो, Yes. इट्स लाइक वी ड्रॉ ब्लड फ्रॉम योर स्किन एंड वी गेट द प्लेटलेट रिच प्लाज्मा एंड देन वी इंजेक्ट इट इनटू द स्किन थ्रू ईदर डर्मा रोलर और डर्मा पेन. तो ये एक बहुत अच्छा आपका कोलेजन एनहेंसिंग प्रोसीजर है, विच लीड्स टू लाइक एंटी-एजिंग थिंग विच लीड्स टू ग्लो ऑन द स्किन. तो ये करा सकते हैं आप अगर, बट फिर भी ऐसा नहीं है कि आप घर बैठ के अपना डर्मा रोलर मूव करें, बिकॉज इसमें ब्लीडिंग होता है. तो देयर आर हाई चांसेस ऑफ इन्फेक्शंस. और फिर बहुत सारी चीज़ें आपको कंसिडर करनी होती है बिफोर गोइंग अहेड विद माइक्रो नीडलिंग. इफ अ पेशेंट कम्स टू मी फॉर माइक्रो नीडलिंग, आई नीड टू सी कि उसको कोई PIH की मतलब पिगमेंटेशन की टेंडेंसी तो नहीं है, केलॉइड फॉर्मेशन तो नहीं है, लाइफस्टाइल कैसा है. तो वो सारी चीज़ें करके अगर आप उसमें फिट इन होते हो तो माइक्रो नीडलिंग इज अ वेरी गुड प्रोसीजर इफ यू टेक इट once in 3 months or so. So micro needling and this vampire facial is one and the same thing. माइक्रो नीडलिंग इज अ ब्रॉडर टर्म. Okay. माइक्रो नीडलिंग हम हेयर के लिए भी करते हैं, हेयर लॉस एंड सब चीजों के लिए. माइक्रो नीडलिंग हम एक्ने स्कार्स के लिए भी करते हैं. वेम्पायर फेशियल यूजुअली एक स्किन रेजुविनेशन प्रोसीजर हम मानते हैं. उसमें हम बहुत डीप माइक्रो नीडलिंग नहीं करते. We keep it little superficial. I have seen in one of the series only that the blood is taken from the skin only and then they from any the part, body part. Okay. like Just it's injected? taken for samples. Okay. In a similar way it's taken and then it's injected. और उसमें ये रहता है कि डर्मा रोलर की हमारी लेंथ होती है, निडल लेंथ होती है, तो वो कितना है. तो फॉर वेम्पायर फेशियल वी कीप इट लिटिल शॉर्ट, लाइक 0.5 0.75 तक रखते हैं. इफ वी आर वर्किंग ऑन स्कार्स तो हम उसको 2 मिलीमीटर तक हम जो है जाते हैं. So is it painful procedure? We do apply numbing cream. तो इतना मतलब you can say discomfort होता है but pain नहीं होता है. तो patient easily takes it और मतलब many patients swear by it क्योंकि results अच्छे रहते हैं for fine lines and wrinkles. और जो आप केमिकल पील की बात कर रहे हो, अगेन बहुत मिथ है केमिकल पील से रिलेटेड, बट अगर आप अच्छे ब्रांड्स की केमिकल पील्स यूज कर रहे हो और एक ट्रेन डर्मेट के अंडर में कर रहे हो तो देयर इज नो साइड इफेक्ट टू इट. आपको बस प्री पील पोस्ट पील प्रिकॉशंस फॉलो करने हैं एंड योर डर्मेट नोज कि आपको कौन सी पील सूट होगी. आपको एंटी एक्ने पील चाहिए या मेलेज्मा के लिए चाहिए या एंटी एजिंग के लिए चाहिए, तो इट डिपेंड्स, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं पील में भी. लाइक आई डू हैव ऑलमोस्ट 25 to 30 peels at my clinic. तो वो percentages of peel concern पे डिपेंड करता है. सॉल्ट क्या यूज करना है वो भी आपके कंसर्न पे डिपेंड करता है. Are these procedures expensive? नो नॉट वेरी एक्सपेंसिव, नहीं, बट ये है कि अगेन डिपेंड कि आप कौन सा प्रोडक्ट यूज कर रहे हो. इफ यू आर यूजिंग अ गुड स्टैंडर्ड प्रोडक्ट तो थोड़ा सा हायर कॉस्ट रहता है. एंड जो माइक्रो नीडलिंग एंड ऑल होता है बिकॉज इट इन्वॉल्व्स ब्लड, तो जो भी आप चीजें यूज कर रहे हो दोज आर ऑल डिस्पोजेबल्स. वो आपके लिए ही यूज होगा, वन टाइम यूज होगा, तो अगेन इट रेजेस अ कॉस्ट लिटिल बिट. अच्छा, तो कौन सी एज में हमें सब चीजें मतलब करवा सकते हैं? देखिए, मैं कहूंगी आइडियली आफ्टर 30 यू शुड स्टार्ट विद ऑल दिस. उससे पहले बहुत ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि तब उससे पहले तो इफ यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर डाइट और अपना नॉर्मल स्किन केयर रूटीन कर रहे हो तो यू डोंट रिक्वायर टू गो फॉर एनी पर्टिकुलर प्रोसीजर्स अनलेस एंटिल यू हैव सम कंसर्न्स. अगर एक्ने है और एक्ने के बाद का पिगमेंटेशन है, जो पोस्ट एक्ने स्पॉट्स हैं, तो पीलिंग्स आप बहुत अच्छे से करा सकते हो और कराना चाहिए. और वेम्पायर फेशियल्स आर गुड फॉर एंटी एजिंग. हाँ, वो आप पोस्ट 30 यू कैन वो करवा सकते हैं. हाँ, ऑफ एंड ऑन करवा सकते हैं. हाँ, once in 3 months, once in 6 months आप करवा सकते हैं. Okay, all these things like
stress, the amount of sleep, then the water intake and the diet you take, ये सब चीजों का इफेक्ट है स्किन के ऊपर और कैसे है? डेफिनेटली है। डाइट का तो जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि आपने बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को भी देखा होगा, दे जस्ट अवॉइड ऑल वाइट्स इन देयर डाइट, तो वो बहुत वाइट वर्क मींस करता है। एग वाइट आल्सो? नहीं नहीं, वाइट्स मीन्स आपका डेयरी हो गया, आपका फ्लावर हो गया, जो रिफाइंड फ्लावर हो गया, आपका वाइट शुगर हो गया। तो ये चीज़ें अगर आप अवॉइड कर सकते हैं, जंक अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो, और साथ में डेफिनेटली सब पेरेंट्स की आजकल यही कंप्लेन होती है कि फ्रूट्स नहीं खाते, वेजिटेबल्स नहीं खाते, बट ये तो यू हैव टू मेक दिस अ हैबिट कि आपका बच्चा अगर शुरू से ही वन फ्रूट ऑन अ रेगुलर बेसिस, वन बोल ऑफ वेजिटेबल ऑन अ रेगुलर बेसिस लेता है, तो वो लॉन्ग टर्म में, क्योंकि 20 ईयर्स तक तो क्या है, आपकी स्किन ना अपने आप ही कवर अप कर रही है, वॉट एवर यू आर डूइंग टू योर डाइट, योर स्किन एंड ऑल, इट्स कवरिंग अप। बट आफ्टर 20 यू सडनली रियलाइज कि ये क्या हो रहा है, इतनी जल्दी लाइंस क्यों आ रही है, रिंकल्स क्यों आ रही हैं, क्योंकि आपने उससे पहले कभी अपनी डाइट का ध्यान नहीं रखा है। तो वो चीज फिर वो एकदम से आफ्टर 20-30 वो रिफ्लेक्ट होने लग जाता है। तो डाइट तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, स्पेशली इन एक्ने। अगर डलनेस है, ड्राइनेस है, ड्राइनेस भी कई बार बहुत सारी डेफिशिएंसीज की वजह से हो सकता है। विटामिन ए, जिंक, B12, अगर ये डेफिशिएंसीज हैं तो स्किन काफी ड्राई रहती है, उस चीज का ध्यान रखना है। स्ट्रेस अगेन इज अ ट्रिगरिंग फैक्टर टू ऑलमोस्ट एवरी कंसर्न ऑफ बॉडी। तो स्किन भी ऐसा नहीं है कि उससे अफेक्ट नहीं होता। स्ट्रेस कैन लीड टू एक्ने ट्रिगर, इट कैन लीड टू हेयर फॉल। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट तो अपने को, किसी को भी जो है थोड़ा सा अपने आप देखना है कि इन विच एवर वे दे कैन कंट्रोल द लेवल ऑफ स्ट्रेस, वो करना है। बिसाइड्स डाइट एंड स्ट्रेस और चीजें जो हैं, स्लीप का भी अगेन इट्स रिलेटेड टू स्ट्रेस। आप यू वुड हैव योरसेल्फ रियलाइज्ड कि आप जिस दिन तो नींद कम आती है, नींद कम आती है। एंड अगर आप ब्यूटी स्लीप जो हम कहते हैं, अगर आप इफ यू हैव टेकन गुड 7 to 8 hours ऑफ साउंड स्लीप, यू योरसेल्फ फील रेजुविनेटेड इन द मॉर्निंग। आपको लगेगा कि स्किन भी अच्छा लग रहा है, ग्लो कर रहा है और सब चीजें। तो दीज आर ऑल इंटरलिंक्ड। बट ये हम ऐसा नहीं कह सकते कि हम सब कुछ फॉलो कर रहे हैं बट हम इन चीजों को नहीं देख रहे हैं। तो हाँ, दे गो हैंड इन हैंड। To sum up the podcast, I just want to ask you yes or no questions. Okay, sure. Yeah. So first question is, can drinking water completely just clears your skin? No, it's not like that. It's not like that. So is it okay to skip moisturizer if you have oily skin? No, one should use a moisturizer, but specifically meant for your skin type. Okay. So there are multiple actives that they say they damage your skin. Do they damage your skin, actives, or they are very good for your skin? Again, depends on the active you are using and the kind of skin you have. Otherwise, actives are good, but you should know where and when to apply. Are eyes facials permanent treatment for tightening of the pores? No, not at all. Not at all. Yeah. So thank you so much for your valuable time. My pleasure. Thank you. Thank you.